آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں کلکتہ سے تشریف لائے ہوئے مہمان شاعر جناب حبیب ہاشمی صاحب کو انتہائی عزت و احترام اور انتہائی خلوص کے ساتھ میں دعوت کلام دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اس مشاعرے کا خوبصورت آغاز کریں. جناب حبیب ہاشمی صاحب. تو سب کچھ تھا یہاں شاہ امم سے پہلے یوں تو سب کچھ تھا یہاں شاہ امم سے پہلے صرف انسان نہ تھا ان کے کرم سے پہلے صرف انسان نہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے کرم سے پہلے دھول ہی دھول اڑا کرتی تھی صحراؤں میں. دھول ہی دھول اڑا کرتی تھی صحراؤں دھول میں. ہی دھول اڑا کرتی تھی صحراؤں میں راہ ویران تھی اس نقش قدم سے پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. راہ ویران تھی اس نقش قدم سے پہلے. سبحان اللہ. تاکہ سایہ بھی نہ قد سے کبھی آگے جائے. تاکہ سایہ بھی کبھی قد سے نہ آگے جائے. راہ ویران تھی تاکہ احسان کسی شے کا نبوت نہ ہو. کیا کہنا واہ. تاکہ احسان کسی شے کا نبوت نہ ہو. آپ کو خلق کیا لوح و قلم سے پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو خلق کیا لوح و قلم سے پہلے. دیکھیے وہ نظر آتا ہے غلاف کعبہ. دیکھیے وہ نظر آتا ہے غلاف کعبہ. دیکھیے وہ نظر آتا ہے غلاف کعبہ. پلکیں دھو لیجئے دیدار حرم سے پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پلکیں دھو کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
دیدار حرم سے پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں کہ جناب انور امان کو یہاں آواز دی جائے اور ان سے گزارش کی جائے کہ محبتوں کے شہر کی ترجمانی وہ کرتے ہیں تو محبتوں کے جذبات کی ترجمانی اپنی شاعری میں کریں اور اپنے کلام سے نوازیں. ایک مطلع چند شعر ملاحظہ فرمائے حضرات. ارشاد. خود کو بے یارو مددگار بنا دیتا ہے. خود کو بے یارو مددگار بنا لیتا ہے. بے یارو مددگار بنا دیتا ہے. قرض انسان کو بیمار بنا دیتا ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنا. واہ 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 واہ. خود کو بے یارو مددگار بنا دیتا ہے. قرض انسان کو بیمار بنا دیتا ہے. اس کے قبضے میں ہے سب کچھ وہ جسے چاہتا ہے. اس کے قبضے میں ہے سب کچھ وہ جسے چاہتا ہے. ملک کا مالک و مختار بنا دیتا ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنا. واہ واہ واہ. اس کے قبضے میں ہے سب کچھ وہ جسے چاہتا ہے. ملک کا مالک و مختار بنا دیتا ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائے. دوریاں خون کے رشتوں میں بھی ہو جاتی ہیں. دوریاں خون کے رشتوں میں بھی ہو جاتی. دوریاں خون کے رشتوں میں بھی ہو جاتی ہیں. بھائی جب صحن میں دیوار اٹھا دیتا ہے. واہ واہ واہ. دوریاں خون کے رشتوں میں بھی ہو جاتی ہیں. بھائی جب صحن میں دیوار اٹھا دیتا ہے. حسن کردار میں شامل ہو. حسن کردار میں شامل ہو. اگر حسن خلوص دشمنوں کو بھی طرفدار بنا دیتا ہے. واہ واہ واہ. حسن کردار میں شامل ہو. اگر حسن خلوص دشمنوں کو بھی طرفدار بنا دیتا ہے. اور ٹوٹتا حوصلہ گم گشتہ مسافر کے لیے واہ راہ کو اور بھی دشوار بنا دیتا ہے. واہ واہ واہ. حضرات بہت بہت شکریہ. 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائے. محبتیں آپ کی تمام. جی پڑھیے بھائی. ہوا تو ہی بتا دے سرحدوں کے پار کیسا ہے. ہوا تو ہی بتا دے سرحدوں کے پار کیسا ہے. ہوا عابد بھائی تشریف رکھتے ہیں. ہوا تو ہی بتا دے سرحدوں کے پار کیسا ہے. میرا غم بانٹنے والا میرا غم خار کیسا ہے. واہ واہ واہ. ہوا تو ہی بتا دے سرحدوں کے پار کیسا ہے. میرا غم بانٹنے والا میرا غم خار کیسا ہے. واہ. اور کسی کی خوش لباسی پر یقین کریے نہ آپ ہرگز. کسی کی خوش لباسی پر یقین کریے نہ آپ ہرگز. یہ پہلے دیکھیے اس شخص کا کردار کیسا ہے. بہت بہت شکریہ حضرات. غزل کا مطلع ترنم میں پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے. یہ کام کتنے سلیقے سے کر گیا کوئی. یہ کام کتنے سلیقے سے کر گیا کوئی. یہ کام کتنے سلیقے سے کر گیا کوئی. نظر کے راستے دل میں اتر گیا کوئی. بھائی کیا کہنا انور امان صاحب. واہ واہ واہ. جی یہ کام کتنے سلیقے سے کر گیا کوئی. نظر کے راستے دل میں اتر گیا کوئی. بہت شکریہ. حسن مطلع ملاحظہ فرمائے. ارشاد. دلوں پہ بوجھ رفاقت کا دھر گیا کوئی. دلوں پہ بوجھ رفاقت کا دھر گیا کوئی. دلوں پہ بوجھ رفاقت کا دھر گیا کوئی. پھر آج شہر میں فاقوں سے مر گیا. واہ واہ واہ. آئیے آج کے عہد کے کڑوے کسیلے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ضلع کے کئی نمائندہ شاعر
अपना कलाम पेश करना चाहते हैं यहाँ, उनमें से एक शायर का इंतखाब हमारी कमेटी ने, जिनका ताल्लुक भरगैन से है, भरगैन से जनाब उम्मीद आलम साहब वहशी हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब उम्मीद आलम वहशी तहतुल लफ्ज़ में अपना कलाम पेश करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इख्तिसार के साथ अपना कलाम पेश करें। एक मतला, एक शेर। शराफत का अजूबा है, शराफत का अजूबा है, मोहब्बत की निशानी है। शराफत का अजूबा है, मोहब्बत की निशानी है। यही पहचान है अपनी कि हम हिंदुस्तानी हैं। यही पहचान है अपनी कि हम हिंदुस्तानी हैं। हकीकत आज भी जिंदा है ये दुनिया के होठों पर। हकीकत आज भी जिंदा है ये दुनिया के होठों पर। वाह, हमी परवरदे अमनो अमन है, सच के बानी है। वाह वाह वाह। हमी परवरदे अमनो अमन है, सच के बानी है। और चार मिसरे नदीम भाई के। इरशाद इरशाद। हम खाकसार बड़ा एहतराम करते हैं। हम खाकसार बड़ा एहतराम करते हैं। वतन की मिट्टी को झुककर सलाम करते हैं। वाह वाह वाह। लहू से अपने पिलाते हैं, लहू से अपने मिटाते हैं तशनगी इनकी। क्या कहना। लहू से अपने मिटाते हैं तशनगी इनकी। ये जर्रे जब कभी हमसे कलाम करते हैं। क्या कहना। वाह वाह। ये जर्रे जब कभी हमसे कलाम करते हैं। वाह। तुम अपने जिस्म से हर एक कतरे को फिदा करना। तुम अपने जिस्म से हर एक कतरे को फिदा करना। जमी के खुश्क होठों को लहू देकर हरा करना। बहुत ही प्यार से पाला है तुमको गोद में अपनी। क्या कहना बाबा। बहुत ही प्यार से पाला है तुमको गोद में अपनी। ये धरती माँ अगर माँ है तो इसका हक अदा करना। वाह वाह। ये धरती माँ अगर माँ है तो इसका हक अदा करना। वाह। और चार मिसरे हजरात। वतन पर जान देंगे मेरे लिए पाबंदी है। वतन पर जान देंगे आओ इस जान की कसम खा ले। वतन पर जान देंगे आओ इस जान की कसम खा ले। क्या कहना। कसम खा ले धर्म की याद ईमा की कसम खा ले। मिटा डालेंगे हम मिलकर जो होगा देश का दुश्मन। वाह वाह। मिटा डालेंगे हम मिलकर जो होगा देश का दुश्मन। तुम गीता की कसम खा लो हम कुरान की कसम खा ले। वाह वाह। तुम गीता की कसम खा लो हम कुरान की कसम खा ले। और हजरात मैं गजल के बारे से एक मतला चंद शेर। छलकते आंसुओं को मेरे बाजारी समझती है। छलकते आंसुओं को मेरे बाजारी समझती है। मेरी सच्चाई को दुनिया कलाकारी समझती है। मेरी सच्चाई को दुनिया कलाकारी समझती है। और किसी के सामने उठने से पहले हाथ कटवा दे। क्या कहना। किसी के सामने उठने से पहले हाथ कटवा दे। गरीबी तू अगर जो मेरी खुददारी समझती है। वाह 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 वाह। गरीबी तू अगर जो किसी के सामने उठने से पहले हाथ कटवा दे। गरीबी तू अगर जो मेरी खुददारी समझती है। और हमारे बाद हमको मुद्दतों रोएगी धरती माँ। हमारे बाद हमको मुद्दतों रोएगी धरती माँ। ये अपनी जान से बेटों की जान प्यारी समझती है। वाह वाह वाह। ये अपनी जान से बेटों की जान प्यारी समझती है। ये अपनी जान से बेटों की जान प्यारी समझती है। बचाना किसका घर है किसके घर को आग देनी है। बचाना किसका घर है किसके घर को आग देनी है। बचाना किसका घर है किसके घर को आग देनी है। सियासत की जुबान लफ्जों की चिंगारी समझती है। और ये दौरे बेसरोसामा हमारा साथ क्या देगा। ये दौरे बेसरोसामा हमारा साथ क्या देगा। हमारी अजमत रफ्ता रवादारी समझती है। वाह वाह। जनाब डॉक्टर राही निजामी जो बुलंदशहर से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, उन्हें मैं माइक पर आवाज देना चाहता हूं और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपने कलाम से नवाजें। गजल से पहले एक मतला दो शेर।
मुलाज़ फरमाएगा। समझ कर जो न कुछ समझे उसे नादान कहते हैं। समझकर जो न कुछ समझे मुलाज़ उसे नादान कहते हैं। समझ कर जो न कुछ समझे उसे नादान कहते हैं, उसे नादान कहते हैं। हुकूमत जो करे दिल पर उसे सुल्तान कहते हैं। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है आपसे रूबरू, मुलाज़ फरमाएगा। जी इरशाद। वो चाहे लाख हो धनवान, इससे क्या गरज हमको। वो चाहे लाख हो धनवान, इससे क्या गरज हमको। वो चाहे लाख हो धनवान, इससे क्या गरज हमको। गरीबों के जो काम आए उसे धनवान कहते। वाह वाह वाह। गरीबों के जो काम आए। क्या कहना। ये भी दाद है आपकी मोहब्बतों के साथ मुलाज़ फरमाएगा। और इसलिए एक बतौर खास मुलाज़ की हाज़िरी। किताबें यूं तो पहले भी हुई नाज़िल रसूलों पर, किताबें यूं तो पहले भी हुई नाज़िल रसूलों पर। जो आका पर हुआ नाज़िल उसे कुरआन कहते। वाह वाह। लीजिए कौम में जदीद बात की इस मुशायरे इस शेर के जरिए मुलाज़ फरमाएगा। हसन साहब जी जी पढ़िए भाई। जहाँ हिंदू मुसलमान प्यार से मिलजुल के रहते हैं, जहाँ हिंदू मुसलमान प्यार से मिलजुल के रहते हैं, उसे हम फखरिया लहजे में हिंदुस्तान कहते। वाह 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 वाह। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब डॉक्टर नदीम शाद से और आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जोरदार इस्तकबाल कीजिए हमारे मेहमान शायर जनाब डॉक्टर नदीम शाद का। मैं उनसे गुजारिश करूं कि वो अपने कलाम से नवाजें। मतलब यूं अर्ज किया है दोस्तों कि हर कदम पर जो हमें बेआबरू करते रहे, हर कदम पर जो हमें बेआबरू करते रहे, हर कदम पर जो हमें बेआबरू करते रहे, वाह। जिंदगी भर हम उन्हीं की आरजू करते रहे। क्या कहना। वाह 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 वाह। हर कदम पर जो हमें बेआबरू करते रहे, जिंदगी भर हम उन्हीं की आरजू करते रहे, जिंदगी भर हम उन्हीं की आरजू करते रहे। अब शेर सुनिए बतौर खास। हर कदम पर जो हमें बेआबरू करते रहे, वाह। जिंदगी भर हम उन्हीं की आरजू करते रहे। अब शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए कि माँ की खिदमत है इबादत, ये सुना तो तब लगा। माँ की खिदमत है इबादत, ये सुना। माँ की खिदमत है इबादत, ये सुना तो तब लगा। ये इबादत आज तक हम बेवजू करते रहे। वाह 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 वाह। मैं क्या कहना नदीम। माँ की खिदमत है इबादत, ये सुना तो तब लगा। ये इबादत आज तक हम बेवजू करते रहे। वाह वाह वाह। आइए एक मतला एक शेर और हाजिर करता हूँ, सुनिए। मतला यूं अर्ज किया है कि ए यार कुछ तो गम की हिरासत में कट गए, ए यार कुछ तो गम की हिरासत में कट गए, कुछ दिन तेरे विसाल की चाहत में कट गए। वाह 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 वाह। कुछ दिन तेरे विसाल की चाहत में कट गए। अब शेर हाजिर करता हूँ कि कुछ दिन तेरे विसाल की चाहत में कट गए। अब जब तलक जिएंगे तो नफरत करेंगे हम, अब जब तलक जिएंगे तो नफरत करेंगे हम।
وہ دن ہی اور تھے جو محبت میں کٹ گئے. واہ 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 واہ. اب جب تلک کیا جیئیں گے. کہنا ندیم صاحب، واہ واہ واہ. یہ اصل میں آپ کے مطلب کی بات تھی تو اس لیے جیسے تالیاں بھی بجی اور سیٹی بھی بجی. ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں، سنیے. ارشاد. اب جب تلک جیئیں گے تو نفرت کریں گے ہم، وہ دن ہی اور تھے جو محبت میں کٹ گئے. کیا کہنا. اب خاک عشق ہو آہا. کہ وہ جذبے ہی مر گئے. واہ. اب خاک عشق ہو کہ وہ جذبے ہی مر گئے، جو عاشقی کے دن تھے شکایت میں کٹ گئے. واہ 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 واہ. اب خاک عشق ہو کہ وہ جذبے ہی مر گئے، واہ واہ واہ. جو عاشقی کے دن تھے شکایت میں کٹ گئے. کیا کہنا. واہ. بہت شکریہ. ترنم سے کچھ سنانے سے پہلے ایک مطلع ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں، وہ بھی سن لیجئے. اس کے بعد چند شعر ترنم میں سناؤں گا. سنیے. ایک مطلع یوں عرض کیا ہے کہ بھلے ایک بار ہونا چاہیے تھا، بھلے ایک بار ہونا چاہیے تھا، بھلے ایک بار ہونا چاہیے تھا، کسی سے پیار ہونا چاہیے. واہ 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 واہ. کسی سے پیار ہونا چاہیے کیا تھا. کہنا ندیم. واہ واہ واہ. اور یہ شعر سنیے. اس شعر کا کردار آپ لوگ ہیں. بطور خاص حاضر کرتا ہوں، اگر اچھا کھا ہو تو آپ کی بھی دعائیں چاہتا ہوں جن کی آواز ابھی آئی ہے. ارشاد. کہ بھلے ایک بار ہونا چاہیے تھا، کسی سے پیار ہونا چاہیے تھا، کھڑے ہیں وہ غلاموں کی صفوں میں، آہا. کھڑے ہیں وہ غلاموں کی صفوں میں، جنہیں سردار ہونا چاہیے تھا. واہ 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 واہ. کھڑے ہیں وہ غلاموں کی صفوں میں، واہ واہ واہ. جنہیں سردار ہونا چاہیے ہونا تھا. چاہیے تھا. کھڑے ہیں وہ غلاموں کی صفوں میں، کیا کہنا. واہ. جنہیں سردار ہونا چاہیے تھا. بہت شکریہ. آئیے اب چند شعر میں ترنم سے حاضر کروں. ایک مطلع حاضر کرتا ہوں، سنیے. ارشاد. ارشاد. بھنور میں رہ کے کنارے تلاش کرتا ہے، 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 زمین پہ کون ستارے تلاش کرتا ہے، زمین پہ کون ستارے ندیم کیا کہنا. واہ واہ واہ. تلاش کرتا ہے. اور یہ شعر بطور خاص حاضر کرتا ہوں تمام جتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. ارشاد. ارشاد. ان سب کی دعائیں چاہتا ہوں. تمام ہمارے ڈائز پہ جتنے بھی معتبر شعراء بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی دعائیں چاہتا ہوں. وہ کیا ندیم کوئی انقلاب لائے گا، وہ کیا ندیم کوئی انقلاب لائے گا، جو ہر قدم پہ سہارے تلاش کرتا ہے، جو ہر قدم پہ سہارے تلاش کرتا ہے. وہ کیا ندیم کوئی انقلاب لائے گا، وہ کیا ندیم کوئی جو ہر قدم پہ سہارے تلاش کرتا ہے. واہ واہ. بہت شکریہ اس محبت کے لیے. آداب. بہت شکریہ. آئیے ایک مطلع ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں. اور اس میں جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں ویسے تو سبھی نوجوان ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کچھ بھوت پورو ہیں، تو میں سب لوگوں کے لیے شعر حاضر کرتا ہوں. اس چکر میں آپ نہ پڑیں. ہمارے محترم مانپال سنگھ جی ورما یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہمارے ضلع کے آبرو ہیں. آئیے ایک مطلع اور حاضر کرتا ہوں. سنیے. تمہیں ہے اس کی ضرورت کہاں سے لاؤ گے، تمہیں ہے اس کی ضرورت کہاں سے لاؤ گے، تمہیں ہے اس کی ضرورت کہاں، تمہیں ہے اس کی ضرورت کہاں سے لاؤ گے، ہمارے بعد محبت کہاں سے لاؤ گے، ہمارے بعد محبت کہاں سے لاؤ گے. اور یہ شعر سنیے. ہاں اسی شعر پہ آپ کو زیادہ داد دینی ہے. حاضر کرتا ہوں. سنیے. ارشاد. ارشاد.
ہمارے بعد محبت کہاں سے لاؤ گے؟ ہمارے جیسی بہت صورتیں ملیں گی مگر ہمارے جیسی بہت صورتیں ملیں گی مگر ہمارے جیسی شرافت کہاں سے لاؤ گے؟ آئیے زوردار استقبال کے ساتھ میں جناب میسم گوپال پوری کو مائک پر آواز دے رہا ہوں اور ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی اپنی شاعری میں کریں، محبتوں کے جذبات کی اور احساسات کی ترجمانی اپنی شاعری میں کریں۔ زوردار استقبال کیجئے جناب میسم گوپال پوری کا۔ بغیر کسی تمہید کے غزل کا مطلب تمامی حضرات کی بہترین سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ارشاد۔ ملاحظہ فرمائے حضرات۔ غلطی ہے کہتے ہیں جو بام پر نہیں آیا، غلط ہے کہتے ہیں، غلطی ہے کہتے ہیں جو بام پر نہیں آیا، واہ، نظر کے سامنے رہ کر نظر نہیں آیا، واہ واہ واہ، نظر کے سامنے رہ کر نظر نہیں آیا۔ دوستو، آپ کی خوبصورت سماعتیں ہیں، آپ اپنے گھروں سے نکل کے اس وقت اس پنڈال میں مشاعرہ سننے کے لیے آئے ہیں۔ میں بھی دور و دراز کی مسافت طے کر کے آپ کی خدمت میں اشعار پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، سنانے آیا ہوں۔ تھوڑی سی آپ کی محبتیں اور چاہیے، اگر آپ صرف توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ اپنے لبوں کو جنبش دیں گے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ قدمی تو رکھی دیا عہد شباب میں، لیکن قدمی تو رکھی دیا عہد شباب میں، لیکن نظر ملانے کا اب تک ہنر نہیں، واہ 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 واہ، نظر ملانے کا اب تک، اگر مجھے معلوم ہوتا یہی سے شروع کرتا میں، اسی شعر سے۔ اب آپ آمادہ ہو گئے، خدا کی قسم میرا دل لگے گا۔ آپ اشعار تو سنیں، انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے، بس شرط یہ ہے کہ توجہ سے سنیں۔ ملاحظہ فرمائے شعر۔ ہمارا گھر تو جلانے کو آ گئے سب لوگ، ہمارا گھر تو جلانے کو آ گئے سب لوگ، ہمارا گھر تو جلانے کو آ گئے سب لوگ، ہمارا گھر تو جلانے کو آ گئے سب لوگ، ہمارا گھر تو جلانے کو آ گئے سب لوگ، چراغ کوئی جلانے مگر نہیں۔ واہ واہ واہ، میں کیا کہنا میسم، واہ 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 واہ، چراغ کوئی جلانے مگر نہیں آیا، نظر کے سامنے رہ کر نظر نہیں آیا۔ اہل کاس گنج کی بہترین سماعتوں کے حوالے یہ شعر میسم گوپال پوری کرتا ہے، خصوصی توجہ۔ ملاحظہ فرمائے۔ نظر کے سامنے رہ کر نظر نہیں آیا، وہ گھر سے نکلا تھا، وہ گھر سے نکلا تھا، دولت کمانے ماں نے کہا،
وہ گھر سے نکلا تھا دولت کمانے، ماں نے نکلا کہا تھا دولت کمانے، ماں نے کہا. ایک ایک فرد کی دعائیں چاہتا ہوں داد کی شکل میں. وہ گھر سے نکلا تھا دولت کمانے، ماں نے کہا. وہ گھر سے نکلا تھا دولت کمانے، ماں نے کہا. ابھی تلک میرا لخت جگر نہیں. واہ 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 واہ. نیسم کیا کہنا، واہ واہ واہ. وہ گھر سے نکلا تھا دولت کمانے، ماں نے کہا. ابھی تلک میرا لخت جگر نہیں آیا. ابھی تلک میرا لخت جگر نہیں آیا. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے جہاں جہاں حضرات ہے. کسی نے پھینکا نہ، کسی نے پھینکا نہ اس سمت ایک بھی پتھر. کسی نے پھینکا نہ اس سمت ایک بھی پتھر. کسی نے پھینکا نہ اس سمت ایک بھی پتھر. کسی نے ایک بھی پتھر. کسی نے پھینکا نہ اس سمت ایک بھی پتھر. شجر کی شاخ پہ جب تک ثمر نہیں آیا. واہ 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 واہ. بھائی کیا کہنا، واہ واہ واہ. کسی نے پھینکا نہ اس سمت ایک بھی پتھر. شجر کی شاخ پہ جب تک ثمر نہیں آیا. شجر کی شاخ پہ جب تک ثمر نہیں آیا. سلسلے کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں. ارشاد کرام. حسین والا ہوں، حسین والا ہوں، حسین والا ہوں. مجھ کو یہ فخر ہے حاصل. حسین والا ہوں، حسین والا ہوں. مجھ کو یہ فخر ہے حاصل. حسین والا ہوں، مجھ کو یہ فخر ہے حاصل. کبھی زمانے کے زیر اثر نہیں آیا. کبھی زمانے کے زیر اثر نہیں آیا. بہت بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کی بہت بہت نوازش، کرم، عنایت. آپ کے نے بھرپور اپنی دعاؤں سے نوازا. مقطع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. کبھی زمانے کے زیر اثر نہیں آیا. ملاحظہ فرمائیں مقطع. کبھی زمانے کے صدا یہ آتی ہے. نوجوانوں کی خصوصی توجہ. صدا یہ آتی ہے صحرا سے قیس کی میسم. صدا یہ آتی ہے صحرا سے قیس کی میسم. صدا یہ آتی ہے صحرا سے قیس کی میسم. صدا یہ آتی ہے صحرا سے قیس کی میسم.
सफर तमाम हुआ फिर भी घर नहीं आया। आइए तंजिया और मज़ाहिया शायरी से अपनी महफिल को कहकहों में थोड़ी देर के लिए तब्दील करें और इस्तकबाल कीजिए जनाब सज्जाद झंझट का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मजा लीजिए, लेकिन उन्हें आगे भी बोलिए। यहाँ से कि मैं झंझट हूं, मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। मैं झंझट हूं, विरासत में मिली है शायरी मुझको। मेरे अब्बा के दादा जान के दादा भी शायर थे। और जिस फन को चुराकर दोस्तों अशार कहता हूं, सुना है ये कि उस फन में मेरे दादा भी माहिर थे। बहुत नाज़िम मुशायरा मेरे नदीम फर्रुख साहब और हमारे नूरुल हसन साहब, जिनकी बदौलत, जिनके हुक्म से मैं हाजिर हुआ हूं। मेरे नाज़िम मुशायरा बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन आपको खूब जोड़ के रखा है। इतना जोड़ के जब आए जबी से उन्होंने अपना माइक संभाला, इधर से उधर फिर रहे हैं। लेकिन उनकी बात देखें साहब, मैं 4 मिसरे उनकी नजर करता हूं, अगर इजाजत हो। पढ़िए पढ़िए। कि अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, अगर एक शेर भी झंझट कभी चोरी का पढ़ता हूं, उठाकर आसमां सर पर सभी शायर बिगड़ते हैं। मगर इन नाज़िम आला को कोई कुछ नहीं कहता जो दौराने निजामत दूसरों के शेर पढ़ते हैं। वाह वाह भाई सज्जाद झंझट, क्या कहना। अफसर साहब, मैं जब हाजिर हुआ तो मैं मेला था बहुत अच्छा, मैंने जल्दी आ गया था तो सोचा कि थोड़ा घूम लिया जाए। तो वही मेले की हरकतें जैसा होता है, आप अक्सर देखते हैं। तो मैं देख रहा था कि एक लड़का दूसरे अपने दोस्त से कह रहा था कि आज तो एक लड़की मुझे हंस के देख रही थी। उस लड़के ने कहा सही कंफर्म भी कर लिया, हंस के देख रही थी या देख के हंस रही थी? अब मुलाजा करें यहां से 4 मिसरे के। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक हुई बे करी। वाह। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक हुई बे करी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा, गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक हुई बे करी। वाह 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 वाह। थाम कर हाथ जो धन्नों का मैं एक दिन बोला, तुझको देखूं हूं तो मनवा में कसक होई बे करी। मुंह पे झापड़ जो पड़ा, गूंज उठा कानों में, प्रेम का छुटिए पटाखा तो धमक होई बे करी। और यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। यकीन है मुझको वो मेरे, यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। वाह। यकीन है मुझको वो मेरे होंगे, अभी मैं उनको पटा रहा हूं। अभी तो खींची है कुछ लकीरें, अभी तो खाका बना रहा हूं। और कटी पतंग की तरह ही एक दिन खुद गिरेंगे वो छत पे मेरी। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। वाह 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 वाह। नहीं किसी पे है काट जिसकी मैं ऐसा मांझा बना रहा हूं। और इस मांझा बनाने के चक्कर में आपने मीडिया के जरिए से कुछ खबरें ऐसी भी देखी होंगी, जो रिटायर्ड जज थे वो भी इसमें मुब्तला हो गए हैं। अब जब वो ये मैंने खबर सुनी मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कि कुछ जजिस मामला ऐसा हुआ है जजों का, तो मेरे 4 मिसरे आपकी नजर करता हूं जहां तक आवाज जाती है। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। वाह 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 वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी हो गई। वाह। अब मुलाजा करें 4 मिसरे इसी हवाले से। अभी एक साहब जो थे अपनी बीवी से बड़े परेशान थे, और वो इतने परेशान कि ये कहने लगे कि साहब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। ये मामला कोर्ट तक जज के सामने पहुंचा। मामला ये था कि बीवी से तो वो कहते थे कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, बीवी कहती थी मैं इसी के साथ रहूंगी चाहे कुछ हो।
हालत इतनी बिगड़ गई कि दोनों ने अपने वकील किए, वो एक साथ रहना चाहती थी, वो नहीं साथ रखना चाहते थे। जज के सामने दोनों की पेशी हुई, दोनों क्लाइंट खड़े थे और दोनों के वकील। जज साहब जैसे ही अपनी कुर्सी पाए उन्होंने पूछा क्या मामला है, तो वो बोले वकील एक साहब के, कहले साहब ये साहब खड़े हैं, कहते मैं इनके अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहता। उनसे पूछा क्यों साहब, कि नहीं साहब मैं, कि वजह बताइए, कि मैं इसके साथ खुश नहीं हूं बिल्कुल भी। उनकी बीवी से पूछा कि क्यों साहब ये कह रहे हैं कि आपके साथ नहीं रहना चाहते, ये आपके साथ खुश नहीं है। उनकी बीवी बोली कि पता नहीं इसी के नखरे, वरना पूरा मोहल्ला खुश है। वाह वाह वाह। अब बुलाया करे यहां से 4 मिसरे, 4 मिसरे बेटे, ये लतीफा दोबारा नहीं सुनाया जाता, जरा सा हल्का लतीफे दोबारा नहीं सुनाए जाते। शेर सुना, शेर आपकी नजर कर रहा हूँ। बुलाया करे ये कि आपके नजर कर रहा हूँ 4 मिसरे के। उसके बाद जब वो पूछा कि क्या मामला है, क्यों नहीं रहना चाहते, तो 4 मिसरे मैंने कहे उसमें कि एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही। वाह। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए। वाह 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 वाह। एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही, कब तलक तुझको मेरी जान दुलारे जाए। अब कबाड़ी के भी मतलब का नहीं तेरा वजूद, हम कहां तक तेरे पुर्जों को संवारे जाए। एक साहब कर लगे झंझट साहब आप मुशहरों में रहते हो, आप मेरी बेटी के लिए रिश्ता बताओ, मैंने तो चप्पल घिस दी है। मैंने कहा साहब इस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर में, एडवांस दौर में, जबकि इंटरनेट ईमेल से बड़ी शादी ब्याह होते हैं, आपने अब भी चप्पल घिस दी है। वो बोले कि साहब मैं तो बड़ा परेशान हूँ, रिश्ता नहीं मिल रहा है बेटी का। तो उन्होंने मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर से बहुत रिश्ते शादी होती है। तो यहां से 4 मिसरे आपकी नजर करता हूँ, शायद की जिलायत में मुलायजा करें कि आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। वाह। आशिकों को मस्ती गुफ्तार में नहलाएगा, क्या खबर थी इश्क इतना मॉडर्न हो जाएगा। और रिश्ता दुख्तर में अब कोई परेशानी नहीं, उसको मोबाइल दिला दो रिश्ता खुद आ जाएगा। वाह वाह वाह। मोहतरमा डॉक्टर नुसरत अंजुम साहिबा से ही गुजारिश कर रहा हूं और आप सबकी जानिब से ही गुजारिश कर रहा हूं, अपनी तरफ से ही गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों के और करीब लेकर चलें। मोहतरमा डॉक्टर नुसरत अंजुम साहिबा। जी सब अल्लाह का शुक्र और आप सबकी दुआएं, आप सबकी मोहब्बतें, चंद अशआर समाअत कीजिए। अर्ज किया है, खिलौने टूटने का गम बहुत होता था बचपन में, खिलौने टूटने का गम बहुत होता था बचपन में, और अब ये है कि दिल भी टूटने का गम नहीं होता। खिलौने टूटने का गम बहुत होता था बचपन में, और अब ये है कि दिल भी टूटने का गम नहीं होता। और एक अशारा और समाअत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपका ही तो यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है, आप जैसे लोग ही मुशायरे में जिंदगी पैदा करते हैं। अगला शेर समाअत करें कि बहुत करीब से आकर निकल गया नुज़हत, बहुत करीब से आकर निकल गया नुज़हत, वो एक लम्हा जो कल तक हमारी ज़द में था। बहुत करीब से आकर निकल गया नुज़हत, वो एक लम्हा जो कल तक हमारी ज़द में था। अगला शेर समाअत करें कि आके मेरे पास बैठो, गुफ्तगू मुझसे करो, आके मेरे पास बैठो, गुफ्तगू मुझसे करो, मैं तसव्वुर से तुम्हारे कब तलक बातें करूं। एक कथा समाअत करें कि अर्ज किया है, एक बार गले मिलके रोने जो दिया होता, एक बार गले मिलके रोने जो दिया होता, एक पल तो मोहब्बत का मैंने भी जिया होता। उस दम तो ठहर जाती धड़कन ही मेरे दिल की, उस दम तो ठहर जाती धड़कन ही मेरे दिल की, जब नाम मेरा तेरी सांसों ने लिया होता। एक मुकम्मल गजल समाअत कीजिए। जिन लोगों की आवाजें ज्यादा आ रही हैं
उनकी नजर करती हूँ, उसके बाद फिर मैं संजीदा शायरी भी करूंगी। पहले कथा समाप्त कर लें, उसके बाद फिर मुकम्मल गजल हाजिर करती हूँ। मुस्कुराने को मेरे प्यार बना देता है, वो हर एक बात को अखबार बना देता है। मुस्कुराने को मेरे प्यार बना देता है, वो हर एक बात को अखबार बना देता है। लम्स में उसके वो जादू है कि एक लम्हे में, लम्स में उसके वो जादू है कि एक लम्हे में मेरे इनकार को इकरार बना देता है। हाजिर करती हूँ। रस्में वफा निभाना तो गैरत की बात है, 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 गैरत की बात है, गैरत की बात है। वो मुझको भूल जाए ये हैरत की बात है, वो मुझको भूल जाए ये हैरत की बात है। जी मैं दोबारा हाजिर करती हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। रस्में वफा निभाना तो गैरत की बात है, रस्में वफा निभाना तो गैरत की बात है, गैरत की बात है, गैरत की बात है। वो मुझको भूल जाए ये हैरत की बात है। सब मुझको चाहते हैं ये शोहरत की बात है, सब मुझको चाहते हैं ये शोहरत की बात है, सब मुझको चाहते हैं ये शोहरत की बात है, सब मुझको चाहते हैं ये शोहरत की बात है, शोहरत की बात है, शोहरत की बात है। मैं उसको चाहती हूँ ये किस्मत की बात है, मैं उसको चाहती हूँ ये किस्मत की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। इजहार इश्क कर ही दिया मुझसे आपने, 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 मुझसे आपने, मुझसे आपने। ये भी जनाब आपकी हिम्मत की बात है, ये भी जनाब आपकी हिम्मत की बात है। मुझसे आपने, ये भी जनाब आपकी हिम्मत की बात है। ये शेर डॉक्टर साहब एक बार फिर पढ़ दीजिए, सब लोग बहुत जी लगा के सुन रहे हैं आपकी गजल। जी जी बिल्कुल, हाँ पढ़ रही। जी मैं दोबारा हाजिर करती हूँ। हाँ पढ़ रही है। इजहार इश्क कर ही दिया मुझसे आपने, इजहार इश्क कर ही दिया मुझसे आपने, इजहार इश्क कर ही दिया मुझसे आपने, मुझसे आपने, मुझसे आपने। ये भी जनाब आपकी हिम्मत की बात है, ये भी जनाब आपकी हिम्मत की बात है। अगला शेर समाप्त कीजिए। तारीफ कर रहे हैं सभी आज कल मेरी,
तारीफ कर रहे हैं सभी आज कल मेरी, तारीफ कर रहे हैं सभी आज कल मेरी, सभी आज कल मेरी, सभी आज कल मेरी। इसमें कोई जरूर सियासत की बात है, इसमें कोई जरूर सियासत की बात है। मैं इस वक्त उन्हें यहाँ आवाज देना चाहता हूँ। इरफान सिद्दीकी ने ये 4 मिसरे कहे कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है ऐलान बहुत करता है, रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। जनाब आजम शाकिरी, हमें इस बात पर फख्र है कि आजम शाकिरी का ताल्लुक हमारे जिले से है। आजम शाकिरी मेरे अच्छे दोस्त और इस मुल्क के एक ऐसे नुमाइंदा शायर जो दुनिया भर के मुल्कों में अपने कलाम और अपने गजल की खुशबू के तहत जाने और पहचाने जा रहे हैं। जोरदार इस्तकबाल करके आजम शाकिरी को इजाजत है कि वो अपना कलाम सुनाना शुरू करें। शुक्रिया, बहुत बहुत। मतलब मुलाजा फरमाएं। इरशाद। खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, क्या कहना, वाह। खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, आंखों में भर जाने के बाद, खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद। आप आए तो मगर तूफान गुजर जाने के बाद, खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये लोग भी सुने मेरे बच्चे, सुने। खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, जख्म जो तुमने दिया वो इसलिए रखा हरा, जख्म जो तुमने दिया वो इसलिए रखा हरा, जख्म जो तुमने दिया वो इसलिए रखा हरा। जिंदगी में क्या बचेगा जख्म भर जाने के बाद, खून आंसू बन गया आंखों में भर जाने के बाद, आंखों में भर जाने के बाद। क्या कहना है? जिंदगी के नाम पर हम उम्र भर जीते रहे, जिंदगी के नाम पर हम समाज फरमाए तमाम अहले इल्म हज़रात का मजमा। जिंदगी के नाम पर हम उम्र भर जीते रहे, जिंदगी को हमने पाया भी तो मर जाने के बाद, जिंदगी को हमने पाया भी तो मर जाने के बाद, खून आंसू बन गया। दोस्तों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस इलाके में ऑल इंडिया मुशायरा हमारे चौधरी नूरुल साहब, शान मोहम्मद भाई और डॉक्टर लायक अली साहब ने ये मुशायरा कायम किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ, अल्लाह इनके हौसले बरकरार रखे। मैं एक गजल पेश करूँ अगर आप हजरात की इजाजत हो, मुलाजा फरमाइएगा। मतलब पेश कर रहा हूँ। सुबह तक चाहतों के दिए, सुने भाई, सुबह तक चाहतों के दिए आंधियों में जलाएगा कौन, सुबह तक चाहतों के दिए, सुबह तक चाहतों के, सुबह तक चाहतों के दिए आंधियों में जलाएगा कौन, दास्तां खत्म होने को है अब मोहब्बत निभाएगा कौन, वाह वाह, दास्तां खत्म होने को है सुबह तक चाहतों के दिए आंधियों में जला
कौन, दास्तां ختم होने को है। अब शेर सुने। अपनी तहजीब की लाश पर रोने वाला भी कोई नहीं, अपनी तहजीब की लाश पर रोने वाला भी कोई नहीं, सबके होठों पे है एक सदा, अब ये मैयत उठाएगा कौन, सबके होठों पे है एक सदा। और आखिरी शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूं। सबके होठों पे है एक सदा। मुलाजा फरमाए अपने बुजुर्गों की अज़मत का ख्याल रखें और ये शेर सुने। आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर, आंधियों से बचाकर रखो अपने आंगन का बूढ़ा, याद रह जाएगा इंशाअल्लाह ये शेर। आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर, ये शजर भी अगर गिर गया फिर कहानी सुनाएगा कौन। वाह वाह, ये शजर भी अगर। फिलहाल आप जोरदार इस्तकबाल करके इमरान प्रतापगढ़ी को इजाजत दीजिए कि ये अपने कलाम से नवाजें। 4 मिसरे पढ़ता हूं सुनेगा। न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, न बांग्लादेश पाकिस्तान और ना चीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान हम उस दीन वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान हम उस दीन वाले हैं। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से, हमें से लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं, हमें से लोग हैं जो सूरह यासीन वाले हैं। वाह वाह वाह। मैं वो नज्म शुरू करता हूँ जो मेरी पहचान का सबब है, पढ़ता हूँ सुनेगा। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का। कि यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मुहब्बत होती, और मुहब्बत होती। कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं एक बंद पढ़ता हूं
کہ چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، کہ دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے، دلی بتا دھوکہ تجھے کب ہم نے دیا ہے، اترانے کے لائق جو ہے سب ہم نے دیا ہے۔ اور ہنسا کا جو الزام لگاتے ہیں وہ سن لیں، گاندھی کو مہاتما کا لقب ہم نے دیا ہے، گاندھی کو مہاتما کا لقب ہم نے دیا ہے، کہ چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی، جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لڑا دی، اپنی جان لڑا دی، ملا تمہیں آزادی کا انعام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ آخری بند سے پہلے کا ایک بند پڑھ رہا ہوں، کہ پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے۔ میڈیا ایماندار ہے تو یہ چھاپے، میں 3 راشٹرپتیوں کے نام گنا رہا ہوں، کہ نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، یہاں سے وہاں تک ایک ہاتھ کو قسم ہے اگلے مصرے پر، کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹانا پائے، لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کہ وضو کے لوٹے کچھ قرآن اور ٹوٹی ہوئی چٹائی، وضو کے لوٹے کچھ قرآن اور ٹوٹی ہوئی چٹائی، جسے دیکھنا ہے وہ آ کر دیکھے یہ سچائی، دیکھے یہ سچائی۔ آمین کہہ کے ودا کرنا چھوٹے بھائی کو اپنے، کہ پھیلا ہے اور پھیلے گا اسلام مدرسوں سے، مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ آئیے محترمہ شبینہ ادیب کو آواز دی جائے اور ان سے گزارش کی جائے کہ اپنے کلام کے ذریعے اس مشاعرے کو کامیابی کی منزلوں کے اور قریب لے کر چلیں۔ ایک شعر نظر کرتا ہوں کہ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ استقبال کیجئے محترمہ شبینہ ادیب کا، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ میں پیش کرتی ہوں، دعا چاہتی ہوں، دیکھیے گا، اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں میں بھی اس نظر کو پڑھنا سنیں۔ ہندوستان ہمارا ہے یہ، ہندوستان ہمارا ہے،
हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, यहीं जिएंगे यहीं मरेंगे ये ऐलान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शरीक हुए और आपने अपनी शायरा को, अपनी बहन को उसी मोहब्बतों से, उन्हीं दुआओं से नवाजा। मैं बंद पढ़ती हूँ, इसी तरह से नवाजते रहिएगा, मैं हौसला करती रहूंगी कि चाहे अमन के दुश्मन फिर से घर घर आग लगाएं, चाहे शहरों शहरों जाकर फिर वो खून बहाएं, चाहे अमन के दुश्मन फिर से घर घर आग लगाएं, चाहे शहरों शहरों जाकर फिर वो खून बहाएं, गद्दारों के आगे जाकर हाथ नहीं जोड़ेंगे, सब्र करेंगे, सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। करता है अल्लाह हिफाजत, ये ईमान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। एक बंद बतौर खास पढ़ना चाहती हूँ, माइक वाकई बहुत जानलेवा है, लेकिन मैं हौसला कर रही हूँ क्योंकि आप सब बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। सुनिएगा, मैं पेश करती हूँ। जिन लोगों को भी जाना था चले गए वो कराची, हमको नाज इस धरती पर अपनी है ये धरती। जिन लोगों को भी जाना था चले गए वो कराची, हमको नाज इस धरती पर अपनी है ये धरती। इस धरती के सब फूलों में लहू बुजुर्गों का है, सहराओं में जज्ब पसीना अपने पुरखों का है, सारे बाग हमारे हैं, हर रेगिस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। पेश करती हूँ, मुलाहाजा कीजिएगा, देखिएगा कि मुल्क से अपने प्यार करो, इस्लाम यही कहता है। अपनी रगों में दौड़ने वाला खून भी पाकीज़ा है। मुल्क से अपने प्यार करो, इस्लाम यही कहता है। अपनी रगों में दौड़ने वाला खून भी पाकीज़ा है। अपने खून से भारत की तस्वीर सजा देंगे हम, अपने देश की खातिर अपनी जान लुटा देंगे हम। जिसने हमें ये सबक दिया है वो कुरान हमारा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है ये हिंदुस्तान हमारा है। बतौर खास जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, ये बंद आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। अगर मैं सच कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एक एक शख्स की मुझे दुआएं मिलें। मैं इस बंद को हौसले के साथ पेश करती हूँ, उसी हौसले से दाद चाहती हूँ मैं कि हमको निकम्मा कहने वालों जहन को पीछे पलटो, आजादी की जंग की तुम तारीख उठा कर देखो। हमको निकम्मा कहने वालों जहन को पीछे पलटो, आजादी की जंग की तुम तारीख उठा कर देखो। अपने पुरखों से पूछो तहरीक खिलाफत क्या थी, कौन थी शौकत और मोहम्मद अली की हिम्मत क्या थी।
शुक्रिया। अपने पुरखों से पूछो तहरीक खिलाफत क्या थी, कौन थे शौकत और मोहम्मद अली की हिम्मत क्या थी। अंग्रेजों को जिसने डुबोया वो तूफान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। और आइए हम सब मिलकर ये दुआ भी करें और मुलाहाजा करें। मैं ये दुआया एक बंद पेश करती हूँ, मुलाहाजा करें, देखें कि आँच न आए अब मंदिर पे और न मस्जिद टूटे, अब न जले सिंदूर किसी का, अब न कहीं बम फूटे। आँच न आए अब मंदिर पे और न मस्जिद टूटे, अब न जले सिंदूर किसी का, अब न कहीं बम फूटे। सारे मुरझाए चेहरों पर रंग खुशी का छाई, प्यार की खुशबू फैले और नफरत को मौत आ जाए, भारत फिर जन्नत बन जाए, ये अरमान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। एक बंद और पढ़ती हूँ। मैंने भी हिंदुस्तान के बाहर बहुत सफर किए हैं, लेकिन अपना अजीम हिंदुस्तान जैसा कोई दूसरा मुल्क ना तो मिला है और ना ही मिलेगा। मैं एक बंद पेश करती हूँ, अगर मैं सच कह रही हूँ तो आप एक बार इस सच की तायीद जरूर कर दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। सुनिएगा, मैं पढ़ती हूँ कि दौलत वाले मुल्कों में है दिल चाहत से खाली, खुशहाली के पर्दे के अंदर देखी बदहाली। दौलत वाले मुल्कों में है दिल चाहत से खाली, खुशहाली के पर्दे के अंदर देखी बदहाली। हमने दुनिया घूम के इतनी बाशबीना जानी, करते हैं माँ बाप की खिदमत आज हिंदुस्तान, सारे जहां से आज भी अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। वाह वाह। मैं पेश करती हूँ, मुलाहाजा कीजिएगा। सबसे पहले एक मतला एक शेर, उसके बाद हुक्म तामील इंशाअल्लाह। मैं पढ़ती हूँ। दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, दिल अपना इश्क से आबाद करके देख, दिल अपना इश्क से आबाद करके देख कभी, मेरी तरह तू मुझे याद करके देख कभी, मेरी तरह तू मुझे याद करके देख कभी। तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी, किसी गरीब की इमदाद करके देख कभी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाहाजा कीजिएगा। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। फना के नजदीक है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे, न दोस्तों के, न दोस्तों के। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे अपनों ने मुझे बेपनाह दुआएं दी। न दोस्तों के करम रहेंगे, न दुश्मनों के सितम रहेंगे। फना के नजदीक है ये दुनिया, न तुम रहोगे न हम रहेंगे, न दोस्तों के। मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत ने तुमको अपना बना लिया है,
आइए हजरात, जरा सा माहौल बहुत संजीदा है और ऐसे ही माहौल में जनाब नईम अख्तर खादमी बुरहानपुरी को आवाज दी जानी चाहिए। मैं उनसे गुजारिश करने जा रहा हूं, मेरी आवाज के साथ अपनी तालियों की गूंज शामिल कीजिए और हिंदुस्तान के इस नुमाइंदा शायर को कासगंज के इस तारीख साज मुशायरे में अपनी जोरदार तालियों के बीच आवाज दीजिए। मैं जनाब नईम अख्तर खादमी बुरहानपुरी से गुजारिश कर रहा हूं। एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूं। मतलब मुलायजा फरमाएं कि अच्छा ये तुमने खेल किया खेल खेल में, वाह। मुलायजा फरमाएं, अच्छा ये तुमने खेल किया खेल खेल में, माचिस की तीली फेंक दी मिट्टी के तेल में। वाह वाह नहीं साहब, वाह क्या बात है, वाह। अच्छा ये तुमने खेल किया खेल खेल में, माचिस की तीली फेंक दी मिट्टी के तेल में, माचिस की तीली फेंक दी मिट्टी के तेल में। और शेर पेश कर रहा हूं, बढ़ती हुई मशीन गनें पीछे हट गई। वाह। बढ़ती हुई मशीन गनें पीछे हट गई, ताकत कहां से आ गई इतनी गुलेल में। वाह नहीं भाई, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़ती हुई मशीन गनें पीछे हट गई, बढ़ती हुई मशीन गनें पीछे हट गई, वाह नहीं भाई। ताकत कहां से आ गई इतनी गुलेल में। अच्छा ये तुमने खेल किया खेल खेल में, माचिस की तीली फेंक दी मिट्टी के तेल में। मुलाज़ा फरमाए, एक मतला और दो शेर पेश कर रहा हूं। बिखरे तो फिर जमाने की, क्या बात है नहीं भाई, बहुत अच्छे। ठोकर में आ गए। मुलाज़ा फरमाए, उसी जज्बे और उसी जोश के साथ मुलाज़ा फरमाए। बिखरे तो फिर जमाने की, ठोकर में आ गए। जमाने की ठोकर में आ गए। और मुत्तहिद हुए तो जमाने पे छा गए। क्या बात है, क्या बात है। और मुत्तहिद हुए तो जमाने, और मुत्तहिद हुए तो जमाने पे छा गए। बिखरे तो फिर जमाने की, ठोकर में आ गए। बहुत शुक्रिया। और ये तन्वीर के हवाले से शेर पेश कर रहा हूं, मुलाज़ा फरमाएं। तादाद यूं तो 300 तेरा की थी मगर, तादाद यूं तो 300 तेरा की थी मगर, जब हम लाजन हुए तो हजारों पे छा गए। जब हम लाजन हुए तो हजारों पे छा गए। बिखरे तो फिर जमाने की, ठोकर में आ गए।